السلام علیکم، رائٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں رابعہ یوسف۔ بلیٹنز کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے رخ کرتے ہیں کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا کا، جہاں قائم مدرسہ سلطان العلوم میں حفظ و ناظرہ کے امتحانات سمیت قرأت اور نعت کے مقابلے بھی منعقد کیے گئے۔ مزید بتا رہی ہیں ہماری رپورٹر فرا عارف۔ دربار سلطانی ایف بی ایریا کراچی میں قائم مدرسہ سلطان العلوم میں حفظ و ناظرہ کے سالانہ امتحانات منعقد ہوئے اور ساتھ قرأت و نعت کے مقابلے بھی منعقد ہوئے۔ درس نظامی کے اول، دوئم اور سوئم امتحانات میں کامیاب ہونے والے طلبہ میں تقریب کے سرپرست اعلیٰ حضرت کمال میاں جمیلی سلطانی، نگران محفل صاحبزادہ شاہ محمد یحییٰ فضیل میاں سلطانی اور علامہ حسین شاکر، علامہ عارف حسین سعیدی، علامہ عرفان کمال سلطانی، صوفی پرویز اختر سلطانی، چیئرمین دربار سلطانی ٹرسٹ صوفی سید نیاز سلطانی، قادری محمد اکبر نے انعامات اور اسناد تقسیم کیے اور بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ گزشتہ سالوں کی نسبت اس برس طلبہ کی تعداد کثیر تھی اور امتحانات میں تقریباً تمام ہی طلبہ نے اچھی تیاری کے ساتھ شرکت کی۔ اس موقع پر حضرت کمال میاں جمیلی سلطانی نے بچوں کے والدین اور اساتذہ سے مختصر خطاب میں ان بچوں کے روشن مستقبل اور ملک قوم کے لیے آئندہ اچھے اساتذہ کی تیاری میں مدرسہ سلطان العلوم کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ کیمرہ مین امیر قادری کے ساتھ فرا عارف، رائل نیوز کراچی۔ سوجانی ٹاؤن میں تعینات ASI سعید نے مکمل پولیس ڈپارٹمنٹ کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ سوجانی ٹاؤن کے رہائشی عادل کو چرچ کے جھوٹے کیس میں گرفتار کرنے کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔ متاثرہ شخص کی جانب سے مدد کی اپیل کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے چیف رپورٹر سرفراز ساگر سے۔ تھانہ سرجانی ٹاؤن میں تعینات ASI سعید نے پولیس ڈپارٹمنٹ کا نام بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سرجانی ٹاؤن کے رہائشی مقامی شہری مکان کے مالک عادل کو 1 کلو چرس میں بند کرنے کی دھمکیاں۔ ایسے کرپٹ، رشوت خور اور لینڈ مافیا کی سرپرستی کرنے والے افسران جو شہریوں کی جان و مال کی حفاظت نہ کر سکیں، انہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ متاثرہ شہری سرجانی ٹاؤن کے رہائشی محمد عادل کی کہانی، اس کی اپنی زبانی۔ السلام علیکم بھائی، میرا نام محمد عادل ہے ولد عبدالرشید۔ یہ میرا مکان ہے سرجانی سیکٹر 4B، مکان نمبر ہے R121۔ یہ تقریباً 2 سال سے میرے پاس ہے بھائی، اس کو میں نے رہنے پہ دیا ہوا ہے۔ اور آج اس کا ایک دعوے دار آتا ہے، اس کا نام ہے محمد سلیم۔ وہ میرے کو سرجانی تھانے میں بلاتا ہے، سرجانی تھانے میں بلا کے اس کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں بھی اپنے ڈاکومنٹس لے کے جاتا ہوں، وہ میرے ڈاکومنٹس کو جعلی قرار دیتے ہیں۔ جعلی قرار دینے کے بعد سرجانی تھانے میں ASI جن کا نام ہے سعید، وہ میرے کو دھمکیاں دیتے ہیں اس خالی پرچے کے اوپر سائن کریں، نہیں کریں گے تو میں آپ کو 1 کلو چرس کے کیس میں بند کر دوں گا، لاک اپ کر دوں گا، اور کل دوپہر تک یہ میرا مکان خالی کر دیں۔ نہیں کرا تو میں آپ کو زبردستی پولیس لا کے آپ کا سامان باہر پھینکوں گا، زبردستی خالی کراؤں گا، لیڈیز پولیس لاؤں گا۔ بھائی میں غریب آدمی ہوں، میرے ساتھ انصاف دلایا جائے میرے کو۔ میں آپ سے ریکویسٹ ہے، تمام اعلیٰ مقام سے ریکویسٹ ہے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، IG DIG، وزیر اعظم، ہم سب سے ریکویسٹ ہے۔ اس کا کرایہ آتا ہے، اس سے میں گھر چلاتا ہوں، میری چھوٹی چھوٹی 3 بچیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، لہٰذا میرے کو انصاف دلایا جائے۔ متاثرہ شخص عادل کا کہنا ہے کہ میں ایڈیشنل IG کراچی، DIG ایسٹ اور SSP ایسٹ سے متاثرہ شہری کی اپیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے کیونکہ پولیس مجھے بلا جواز تنگ کر رہی ہے۔ کیمرہ مین امیر قادری کے ساتھ سرفراز ساگر، رائل نیوز کراچی۔ بہار کی آمد کے ساتھ ہی علامہ اقبال پارک میلسی گریزن میں سپرنگ فلاور فیسٹیول سج گیا، جہاں انتظامیہ نے بڑی ہی خوبصورتی سے پھولوں کا ایک جہاں آباد کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک مقبول کی رپورٹ میں۔ اور بہار کی آمد کے ساتھ ہی علامہ اقبال پارک میلسی گریزن میں سپرنگ فلاور فیسٹیول سج گیا، جہاں گریزن پارک میلسی کے انتظامیہ نے بڑی خوبصورتی سے پھولوں کا ایک جہان آباد کیا، جو کہ میلسی کے شہریوں اور عسکری حلقوں میں تازہ ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا ثابت ہو رہا ہے۔ اس فیسٹیول کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس کی بڑی تقریب 26 مارچ کو گرینڈ میوزک کنسرٹ کی صورت میں ہو رہی ہے، جس میں پاکستان کے نامور سنگر بلال سعید اور نامور فوک سنگر ظہور احمد لوہار و دیگر آرٹسٹ ہوں گے۔ اس حوالے سے نہ صرف میلسی بلکہ وہاڑی، کروڑ پکا، خیرپوٹا، میاں والی چوک، میتلا و دیگر علاقوں میں تشہیری بل بورڈز لگا دیے گئے۔ اس فیسٹیول میں جہاں بچوں کی تفریح کے لیے جھولے موجود ہیں، وہیں کھانے پینے کے لیے باقاعدہ ایک فوڈ اسٹریٹ بنائی جا رہی ہے۔ لائٹوں کے اضافی انتظام نے ماحول کو خوبصورت، خوشگوار بنا دیا، خوابناک بنا دیا، کیونکہ یہاں پر سیکیورٹی کا نظام بہت مضبوط ہے۔ شہریوں نے گریزن پارک انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا، جن کی وجہ سے عوام کو بھرپور موقع مل رہا ہے۔
प्रेस क्लब तौसा शरीफ का एक अहम इजलास वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार के खिलाफ झूठी और मन घड़त खबरों की शदीद मजम्मत। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तौसा शरीफ प्रेस क्लब का अहम इजलास वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार के खिलाफ झूठे मन घड़त खबरों की मजामत करते हुए संगड़पुर तौसा यूनिवर्सिटी को सलमान तरक्याती काम तौसा अस्पताल की तवसी किसी को हजम नहीं हो रही। वजीर आला पंजाब के खिलाफ बाद सियासतदानों की दाई जाती मीडिया मन घड़त खबरें चला रहे हैं। 3 सालों में एक रोज भी नहीं गुजरा जिसमें वजीर आला के खिलाफ मुहिम बंद हो गई हो। वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार के खिलाफ झूठे बेबुनियाद खबरों की मजामत करते हैं। और तौसा शरीफ प्रेस क्लब के मेंबरान अहदेदारों का मजीद कहना था वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार की काविशों पर और वजीर आज़म पाकिस्तान की इस जद्दोजहद पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब जिन्हें तैनात है उन्हें सारे सराकी बेल्ट नाल सारे बलोच बेल्ट नाल ये नफरत है कि इतो दा वजीरा क्यों तैनात है उन्हें को अलीम खान कबूल है उन्हें आरपीओ सरगोदा रीजन मोहम्मद फैसल राना का डीपीओ मियांवाली के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली का अचानक दौरा। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल कय्यूम नियाजी की रिपोर्ट में। और मियांवाली के इलाका थाना सिटी की हदूद में मुबैना तौर पर नर्स के साथ इज्तिमाई ज्यादती के वाक़या पर आरपीओ सरगोदा फैसल राना अचानक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली पहुंच गए। आरपीओ सरगोदा ने डीपीओ मियांवाली के हमरा मुतासरा नर्स की इयादत की। सीओ हेल्थ डीएचक्यू मियांवाली अमीर अहमद ने नर्स की सेहत के मुतालिक ब्रीफिंग दी। आरपीओ सरगोदा फैसल राना ने डीपीओ मियांवाली को अहकामात जारी करते हुए कहा इस दिलखराश वाक़या में मुलव्वस मुलजिम को स्पेशल टीमें तश्कील देकर फौरी गिरफ्तार किया जाए, कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाए। खवातीन के साथ ज्यादती करने वाले दरिंदों को किसी सूरत माफ न किया जाएगा। इस केस की फॉलो अप रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर आरपीओ ऑफिस को फराहम की जाएगी। आरपीओ सरगोदा ने डीपीओ मियांवाली को हिदायत की कि वो भी मन पुलिस पर हर वक्त मुतासरा नर्स के साथ रहें और इनकी दादरसी को यकीनी बनाएं। डीपीओ मियांवाली इस्माइल रहमान ने अब आरपीओ सरगोदा फैसल राना को बताया थाना सिटी मियांवाली में पुलिस की मुद्दत में ज्यादती के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरपीओ सरगोदा फैसल राना ने कहा इस तरह के अफसोसनाक वाकयात में माशरे के मनफी पहलू की अक्कासी करते हैं। खवातीन के साथ ज्यादती या तशद्दुद किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। आरपीओ सरगोदा ने डीपीओ मियांवाली से कहा मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद करें। मुरीद के शहजाद टाउन में दिन दिहाड़े कत्ल की वारदात। बीवी से नाजायज ताल्लुकात के शुबा में छुरियों और फायरिंग के जरिए अपने हमज़ुल्फ को कत्ल कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और मुरीद के शहजाद टाउन में दिन दहाड़े दिलबराना कत्ल की वारदात। बीवी से मुबैना नाजायज ताल्लुकात के शुबा में फायरिंग और छुरियों के वार करके अपने हमज़ुल्फ को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम कत्ल करने के बाद मौके वारदात से फरार हो गया। मुलजिम शहबाज ने फोन करके अपने हमज़ुल्फ इकबाल को घर पर बुलाया और गली के बाहर फायरिंग करते हुए छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मकतूल मोहम्मद इकबाल की नाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करके हमज़ुल्फ सांडो शहबाज के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। ताहाल मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के सीनियर नायब सदर सिंध जावेद शेख की क़यादत में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से हैदराबाद प्रेस क्लब पर रैली का इनेकाद किया गया। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और प्रेस क्लब हैदराबाद पर सहाफियों से बात करते हुए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सीनियर नायब सदर सिंध जावेद शेख ने कहा 82 बरस पहले बाबा कौम ने जो अहद किया था वो आज पाकिस्तान की शक्ल में मौजूद है। यूथ विंग हैदराबाद के प्रेसिडेंट फैसल शेख ने कहा इस मुल्क को आजाद होने हुए 75 साल गुजर गए, इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करता रहेगा। रैली की क़यादत इंटरनेशनल ह्यूमन राइट मूवमेंट सिंध के सीनियर नायब सदर जावेद शेख, सदर यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद फैसल शेख और प्रेसिडेंट लेडीज विंग डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद सबीन जावेद ने की। पाकिस्तान के इस्तेकाम अमन मान की सलामती और खुशहाली और पाक फौज के लिए खसूसी दुआएं की गयी। शुरा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठाए हुए थे। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी डिवीजन हैदराबाद गुलाम मोहम्मद मेंगल समेत दीगर अहदेदारान और कारकुनान भी मौजूद थे। अब रुक करते हैं ओसा मोहम्मद का, जहां स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मीरजान मोहम्मद खान जमाली की जानिब से रोड स्कीम गोट आबिद हुसैन में तामीराती काम जारी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद रफीक पंद्रानी की रिपोर्ट में। और स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मीरजान मोहम्मद खान जमाली की फंड से और मीर फारूक खान जमाली की तजवीज करदा रोड स्कीम गोट आबिद हुसैन पंद्रानी में तामीराती काम जेरे निगरानी SDO जुल्फकार इमरानी ठेकेदार फरियाद रेन तेजी से जारी है। इस मौका पर आबिद हुसैन पंद्रानी ने
अपने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मीरजान मोहम्मद खान जमाली और मीर फारूक खान जमाली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे गोठ में रोड देकर हमारा दरीना मुतालबा पूरा करते हुए अवामी लीडर होने का सबूत दिया। आबिद हुसैन पंद्रानी ने मजीद कहा, मीरजान मोहम्मद खान जमाली मीर फारूक खान जमाली ने हल्का में बिला रंगो नस्ल अवाम की खिदमत की है, जिसकी वजह से हल्के की अवाम भी मीर साहबान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह मैं अपनी बरादरी के साथ मीरजान मोहम्मद खान जमाली मीर फारूक खान जमाली के शाना बशाना खड़ा रहूंगा। नारोवाल अमन की राहदारी करतारपुर मिलन की राहदारी बन गई। 75 साल कबल तकसीम के वक्त पिछले 4 दोस्त करतारपुर में जा मिले। इस मौके पर जज्बाती मनासिर देखने में आए, अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और करतारपुर राहदारी में बिछड़े खानदानों और बचपन के दोस्तों के मिलाप का सिलसिला जारी है। आज भी करतारपुर में भारत के इलाका फरीदकोट से आए ग्रेमल सिंह और लक्ष्मण सिंह की पाकिस्तान के जिला बहारी से आए हाकिम अली और जमील अहमद से जज्बाती मुलाकात हुई। 117 साल हाकिम अली और 95 साल जमील अहमद 1947 में भारत के शहर फरीदकोट से हिजरत करके पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आबा से करतारपुर राहदारी खुलने के बाद इनके भारत में रह जाने वाले बचपन के दोस्तों ग्रेमेल सिंह और लक्ष्मण सिंह ने इनकी तलाश शुरू की। आखिरकार राब्ता मुमकिन हुआ और चारों दोस्त आज करतारपुर में मिल गए। ज़ईफ हो चुके हाकिम अली और जमील अहमद व्हील चेयर पर अपने बिछड़े दोस्तों से मिले। करतारपुर पहुंचे चारों दोस्तों की मुलाकात इंतहाई जज्बाती माहौल में हुई। खुशी चेहरों पर नजर आ रही थी। करतारपुर इंतजामिया ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया, तोहफे पेश किए। भारत से आए मेहमानों ने इस मौका पर करतारपुर इंतजामिया और हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का भरपूर शुक्रिया अदा किया। 23 मार्च यौम पाकिस्तान के सिलसिले में गोमल स्काउट्स मंजई फोर्ट टाप में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी चंगेज ज़ेब रहे। इस हवाले से मजीद जानते हैं आतम खान कुंडी की रिपोर्ट में। तकरीब में स्कूलों के तलबा और तालिबात भी शामिल हुए। स्कूलों के तलबा ने यौम पाकिस्तान के मौजू पर तकारीर, मिली नगमे और टैबलो पेश किए। तुर्का से खूब दाद वसूल की। इलाकाई मशीरान ने तकरीब के दौरान यौम तजदीद अहद पर अपने ख्यालात का इजहार किया और ये शुल्का में हब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया। डॉक्टर शेख एहसान खान इनकलाबी ने खिताब करते हुए कहा, हम सब एक कौम हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। और कमांडेंट गोमल स्काउट्स ब्रिगेडियर चंगेज ज़ेब ने तुर्का से खिताब करते हुए कहा, आज के दिन हम ये अहद करते हैं पाकिस्तान और अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए किसी सूरत भी वक्त को ज़ाया करने से परहेज करेंगे। एक कामयाब इंसान तालीम के बूते ही कामयाबी से हमकिनार हो सकता है, इसलिए हमें तालीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तालीम से आरास्ता होकर ही हम मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बच्चों में गोमल स्काउट्स की जानिब से स्कूल बैग बैग्स और नकदी इनामात भी तकसीम किए गए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क भर की तरह हरनाई में भी 23 मार्च यौम पाकिस्तान शायान शान तरीके से मनाया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से तफसीलात नजीबुल्लाह शाह की रिपोर्ट में। और यौम पाकिस्तान तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा, मार्च 1940 आल मुस्लिम लीग का तारीखी इजलास लाहौर में हुआ। इस मौका पर शेर बंगाल मौलवी फजल उल हक ने करारदाद लाहौर पेश की, जिसकी ताईद चौधरी खलकुल जमान, मौलाना जफर अली खान, नवाब मोहम्मद इस्माइल खान बेगम, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और दीगर ने की। इस करारदाद में कहा गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इस इजलास की राय है, मुल्क में जोग्राफियाई लिहाज से जहां मुसलमानों की अददी अक्सरियत है, आज़ाद मुमलकत की सूरत में इकट्ठा कर दिया जाए और ये खुद मुख्तार और मुकम्मल हकमियत का हामिल हो। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तलबा में इनामात तकसीम किए गए। उस पुरमसरत मौका पर स्पोर्ट्स वीक इनामात भी तकसीम हुए। प्रिंसिपल ने मेहमानों, लेक्चरार, तलबा और साफियों को शील्ड दी और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बाटा में जराइम की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा।
इसी सबब जराइम पेशा अफराद के खिलाफ गैर मौसर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस हवाले से तफसीलात मोहम्मद कासिम बगियों की रिपोर्ट में। लाड़काना बाड़ा में जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। इसका सबब जराइम पेशा अफराद के खिलाफ गैर मौसर कार्रवाइयाँ बताई जा रही हैं। साबिक SHO बाड़ा की तरफ से मंशियात की नकलो हमल पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी गई थी। नए SHO अब्दुल रजा की तैनाती के बाद बाड़ा और बसगरदाई में मंशियात की खरीदो फरोख्त दोबारा से शुरू हो गई। इस वक्त बाड़ा भर के मुख्तलिफ मोहल्लों में मंशियात की नकलो हमल और तजारत का रोना रोया जा रहा है, जबकि मंशियात की इल्लत से नौजवान, बूढ़े, बच्चे और खवातीन की कसीर तादाद मुतासिर हुए होने की इतलात रोज बरोज मिल रही हैं। अवाम की जानिब से भी प्रयास आराइयाँ की जा रही हैं। बाड़ा पुलिस ने मंशियात के बड़े डीलरों को छूट दे रखी है और पुलिस मामूली मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके अपनी कारकर्दगी साबित कर रही है। मंशियात में शामिल मुजरे सेहत सफीना कारोबार तैयार कर चुका। मज़कूरा कारोबार में बेरोजगार नौजवान, सफेद पोश और वाइट कॉलर अफराद ने बापर्दा खवातीन और गुनौने धंधे में मुलव्वस हैं। आए रोज पुलिस की कार्रवाइयों की इतलात मिलती हैं। पकड़े जाने वाली मंशियात का कितना हिस्सा पुलिस जाहिर करती है और पकड़े जाने वाले कितने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात का अंदराज होता है, ये महकमा पुलिस के जिम्मेदारान ही बता सकते हैं। ये एक तलख हकीकत है। गिरफ्तार किए जाने वाले मुलजिमान के थाने पहुंचने से कबल इनके सहूलतकारों की आमद टेलीफोन पर सिफारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। समझ में ये नहीं आता पड़ोसी दुश्मन मुल्क से मुजरे सेहत 2100 पुड़ियाँ हमारे बाड़ा के हर इलाके में कैसे पहुँच जाती हैं। बाड़ा के मोअज़्ज़िन की मुतफ़िका राय है नशा, छालिया, हेरोइन, चेस्ट, शराब की तरसील को रोकने के लिए बड़े डीलर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए और बाड़ा के दाखिली रस्तों पर कायम चेक पोस्टर्स पर बेहतर साख रखने वाले पुलिस अफसरान व अहलकारान को मेरिट पर मुकर्रर किया जाए ताकि इसकी तरसील को नाकाम बनाकर शहरियों और देहातों को इस लानत से पाक करने की साथ नौजवान नस्ल को तबाही से बचाया जा सके। पर असीं सम्झूं था त सिर्फ़ु हे हिकिड़ो छोकिरो न आहे, सॼी सिंध में हिन जहिड़ा हज़ारे ॿिया बि नौजवान आहिनि जेके हिन मर्ज़ में वकोड़जी विया आहिनि। ऐं असीं अॼु जेको आहे सो हिन खां हाल वठंदासीं त हिन शइ में कीअं आयो आहे, हे केरु आहे, किथां जो आहे, ऐं हे कॾहिं खां वापराए थो पियो इहो नशो, ऐं ॾींहं में घणा डोज़ वापराए थो। सो अॼु हिन सां दोस्त ॻाल्हि ॿोल रखूं था। अदा तुंहिंजो नालो छा आहे? मुंहिंजो भाउ शहज़ादो। थोरो तेज़ ॿुधाए बाबा। हेॾे ॾिस। शहज़ादो किथां जो आहे पाण? मां फुलबोर रमाल आयो। बाडरे शहर जो? हा। अच्छा, ज़ातियो केरु आहे? सुमरो। सुमरो। नालो? शहज़ादो। शहज़ादो। अच्छा, ॾियो हाल शहज़ादो, हितां घणो टाइम थी वियो तव्हां जेको आहे सो? 5-6 साल थी विया। 5-6 साल? हा। तव्हांजी उमिरि घणी थींदी बाबा? न कयो तव्हां छॾियो। तव्हां पंहिंजो कमु ॿुधायो बाबा। तव्हां छॾियो हिननि खे, हिन पंहिंजो कमु कंदा, तव्हां पंहिंजो कमु कयो। तव्हांजी उमिरि घणी आहे? मुंहिंजी उमिरि 14-15 साल थी वई। 14-15 साल। ऐं घणो टाइम थियो आहे तव्हांखे? 5-6 साल। 5-6 साल। अच्छा, ॾींहं में घणा दफ़ा पीअंदा आहियो तव्हां? ॾींहं में बसि जेॾी महिल आयो तेॾी महिल पीअंदा आहियूं। अच्छा। जेतिरो पैसो तेतिरो नशो। अच्छा, पोइ तूं हाणे हिकिड़ो त मूंखे इहो सम्झाए त तूं ज़ाहिर आहे पीअंदो, हाणे तोखे पंहिंजे मालिकनि बि घर मां कढी छॾियो हूंदो, ज़ाहिर आहे उहे तोखे ख़र्चु न ॾींदा हूंदा। इन जे लाइ मालिक तोखे ख़र्चु ॾींदा आहिनि त तूं पी? न, तंगी कंदो आहिनि, चोरी कंदो आहिनि। अच्छा, इन जे करे पोइ ॾींदा। सही। हाणे जेकॾहिं तुंहिंजो जेको आहे त गवर्नमेंट ऐं इंसानी हक़नि जा इदारा जेकॾहिं तुंहिंजो इहो इलाजु कराइनि त तूं ख़ुशि थी सघींदो न? हा। छॾे वेंदे? हा। प्रॉमिस कर। वाह वाह। सही। साथियो, अहिड़ा हज़ारे नौजवान आहिनि जेके पंहिंजी ज़िंदगीअ जी जंग हाराईंदा था वञनि ऐं असांजे बाडर शहर में हिन जहिड़ा नौजवान ॿिया खोड़ सारा बि जेको आहे हिन जी फील्ड जा हुया जेके हे जेको आहे पंहिंजो सिस्टम मंशियात वापराए पंहिंजी ज़िंदगी जी जंग हाराए वेठा आहिनि। हाणे मूंखे इहो ॿुधाए त बाबा तुंहिंजे जेको आहे दोस्त शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली टायर ब्लास्ट हो जाने के बाद फुटपाथ से टकराकर नाले में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक ही फैमिली के 16 अफराद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं अब्दुल सलाम डोगर की रिपोर्ट में। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा और फिरोज बटवा की इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर 12 अफराद को तबी इमदाद देते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां हादसे में मामूली जख्मी होने वाले 4 अफराद को मौका पर ही तबी इमदाद फराहम की गई। इत्तला के मुताबिक शेखुपुरा के मोहल्ला मिराजपुरा की फैमिली ट्रैक्टर ट्राली पर चाकोट मेला पर जा रही थी कि भेकी के करीब टायर फटने से ट्रैक्टर ट्राली नाला में जा गिरी, जिससे ट्रैक्टर ट्राली में सवार मुसाफिर जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को फौरन तबी इमदाद देते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
हरनाई के इलाके जरगूनगर में लीज में धमाके के बाइस फंसे 3 मजदूरों को 30 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी ना निकाला जा सका। कीमती जानों के जिया का खदशा, आला हुकाम से मदद की अपील कर दी गई। तफसीलात जानते हैं नसीब तरीन की रिपोर्ट में। हरनाई के इलाके जरगून गैर घाटा की इलाकों में ठेकेदार जुम्मा खान के कोयला खान में गुज़श्ता रोज 8 बजे होने वाले जहरीली गैस के धमाका में अब तक 30 घंटे हो गए, लेकिन फिलहाल हुकूमती इमदादी टीमों को कामयाबी न मिल सकी। तीन बंदों अनबिया खान, मोहम्मद, उमर और समीउल्लाह को मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मी हालत में लर्ज निकाल दिया गया था, जबकि 3 बंदे मोहम्मद जमील, मोहम्मद सलीम और सलार खान अभी तक लीज के अंदर फंसे हुए हैं। लीज में फंसे 3 बंदों की जानें ज़ाया होने का खदशा बढ़ गया। आला हुकाम से फौरी मदद की अपील। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी कमेटी का इजलास। मजीद जानते हैं इफ्तिखार अली की रिपोर्ट में। तमाम मुतलका महकमे अपनी जिम्मेदारियों को कमाहक पूरा करें। कारकर्दगी रिपोर्ट से मुसलसल आगाह रखा जाएगा। सर्विलेंस की सरगर्मियों में शामिल स्टाफ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए एंड्रॉयड फोन के जरिए अपनी कारकर्दगी अपलोड करते रहे। इजलास से गैर हाजिर अफसरान से वजाहत तलब करने की हिदायत की। दुकानों मार्केटों से डेंगी लार्वा मिलने पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। डेंगी टीमों को फील्ड में तहरीक मुतहर्रक रखें और कारकर्दगी वाज़ेह नजर आनी चाहिए। तहसील सतह पर इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास हफ्ता में दोबारा मुनक्कद करने की हदायत भी जारी की। IG जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बैग का मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए एक और एहसन कदम। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और IG जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बैग का मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए एक और एहसन कदम। IG जेल खाना जात ने मुलाजमीन को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम सुपरिटेंडेंट जेल को मरासला जारी कर दिया और मरासला के मुताबिक हर जेल की स्टाफ कॉलोनी में डिस्पेंसरी कायम की जाएगी, से मुलाजमीन और उनकी फैमिली फायदा उठा सकेंगे। जेल का मेडिकल ऑफिसर रोजाना की बुनियाद पर इस डिस्पेंसरी पर हर वक्त देने का पाबंद होगा। तमाम सुपरिटेंडेंट जेल अमला अमल दरामद करके एक हफ्ता के अंदर तस्वीरी सबूत के साथ मुजाज अथॉरिटी को आगाह करेंगे। IG जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग का कहना है महकमा मुलाजमीन की फलाहो बहबूद के लिए बरोज कोशा है। वजीर तवानाई और आबी वसाइल आजाद कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन की मुमताज वेलफेयर एसोसिएशन बिन फरमान मीरपुर आमद। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। और मीरपुर में वजीर तवानाई व आबी वसाइल आजाद कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन की मुमताज वेलफेयर एसोसिएशन बिन फरमान मीरपुर आमद चेयरमैन ट्रस्ट मुमताज अयाज काजी, प्रिंसिपल राशिद अहमद व दीगर शख्सियात ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौका पर प्रोग्राम सिलसिला तकसीम सनाद तक मुनक्कद हुआ। वजीर तवानाई व आबी वसाइल आजाद कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन ने कामयाब तलबा व तलबात में सनाद तकसीम की और खिताब करते हुए रिफाही अदारों को रियासत की तमीर व तरक्की में अहम किरदार कहा। रियासत की तमीर व तरक्की में अहम किरदार है और कहा रिफाही अदारों का रियासत की तमीर व तरक्की में एक अहम किरदार है। मुस्तहिक और बेरोजगार अफराद को टेक्निकल एजुकेशन देकर नौजवानों की मुआशी मुश्किलात को दूर किया जा सकता है। नौजवानों को सरकारी मुलाजमत फराहम नहीं की गई जा सकती। हुनर फनी तालीम से नौजवानों को रोजगार के मौका फराहम करेंगे। रफाही इदारों जिनमें कोर्ट चौधरी अख्तर ने ज़िलज़िला में लोगों की इमदाद की और इस तरह दातला में केएफ अस्पताल KIRF अस्पताल जहां लोग फ्री इलाज मुआलजा की सहूलत से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। इन्होंने मुमताज वेलफेयर एसोसिएशन के क़याम पर बानी मुमताज अयाज काजी को खराज तहसीन पेश किया और अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर तलबा व तलबात की कसीर तादाद मौजूद थी। दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि जितने भी NGOs या इस किस्म के अदारे होते हैं, फलाही अदारे होते हैं, ये जो है हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे यहाँ पर तकरीबन ये IT कोर्स, डिज़ाइनिंग, वेबसाइट, लेबॉरेटरी और टेलरिंग, बहुत सारे शोबाजात में जो है वो बच्चों को तरबियत दी जा रही है और वो अपने कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं। उन्हें इंस्ट्रक्टर्स भी अवेलेबल हुए हैं टैप्टा से, क्योंकि मैं समझता हूँ कोई भी मुल्क हो या कोई भी रियासत हो, वो खाली नौकरियाँ देकर ही अपने लोगों को जो है वो नहीं चल सकता, वो इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता कि तमाम लोग जो फारिग तहसील हो वो उनको नौकरियाँ ही दी जाएँ। क्योंकि मैं अपना ज़ाती तजर्बा बयान करता हूँ कि मेरे पास
ریاست کی ایک وزارت ہے تو دن رات ہمیں لوگ جو ہے وہ ملازمت کے لیے کہتے رہتے ہیں، لیکن آگے سے محکموں کا یہ حال ہوتا ہے کہ مالی طور پر جو محکمے ہیں وہ اتنا بوجھ نہیں برداشت کرتے، تو اس سے بہتر ہے کہ لوگ جو ہے اپنا فن کو اس قسم کا جو ہے وہ ہنر سیکھ کر تو معاشرے کے جو ہے وہ شہری بنے۔ لیکن یہاں پر جو میں نے اپنے کشمیر کے اندر دیکھا ہے کہ ہمارے جو تارکین وطن سے لوگ ہیں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ان پٹ دے رہے ہیں۔ جیسے چیئرمین صاحب یا ممتاز صاحب نے یہ ادارہ کھولا ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں اور سارے اخراجات بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بے شمار اور ادارے ہیں، وہاں کی جو ساری ان پٹ ہے وہ زیادہ تر تارکین وطن کی ہے۔ جیسے ہمارے چودھری اختر صاحب ہیں، انہوں نے کورٹ کا جو ہے وہ ادارہ کھولا ہے جس میں زلزلہ زدگان کے بچے جو ہیں ان کو تعلیم دی گئی، اور آج بھی وہاں پر جو مستحق لوگ ہیں ان کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی طرح میرے حلقہ انتخاب جاتلا میں جو ہے وہ جو ہے KIRF کے تحت ایک ہاسپٹل قائم ہے جو لوگوں کا علاج کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام جو ادارے ہیں یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ہمیں ان لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے۔ شجاع آباد کے نواحی علاقے کوٹلی تھانہ راجہ رام کی حدود میں لرزہ خیز ڈکیتی کی واردات، مسلح ڈاکو موٹر سائیکل سواروں کو لوٹتے رہے۔ مزید جانتے ہیں اصغر تہیم کی رپورٹ میں۔ اور نوید تقی 2 عدد موبائل، 14,000 نقدی، سجاد ساکی انٹر موبائل کیش 1,000 روپے، حسینی ہوٹل والا کا بھانجا موبائل اور نقدی 3,000، صابر حسین موبائل شناختی کارڈ اور 8,000 کیش، محمد سعید ولد فیض بخش موبائل اور 7,000 کیش، محمد سکلین موبائل اور 1,600 کیش چھین لیا۔ پر کال کرنے پر SHO تھانہ راجہ رام رائے محمد اکرم کھل اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور اس واردات کے بعد عوام میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ تھانہ راجہ رام کے SHO محمد اکرام کھل نے کہا، ہم جلد سباق دشمن عناصر کا گھیرا تنگ کر دیں گے۔ اہلیہ نے علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے اپیل کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، ایڈیشنل IG پنجاب اور وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت، RPM ملتان، CPO ملتان اس واقعہ کا سخت نوٹس لیں اور ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں اور کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے اور لوگوں کو ریکوری کروائی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے، جہاں اسسٹنٹ کمشنر اورنگزیب کی احساس کفالت کے نام پر لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ مزید جانتے ہیں عاطف منیر سے۔ قصور اسسٹنٹ کمشنر اورنگزیب سندھو کی احساس کفالت کے نام پر لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف کارروائی میں خواتین سے فراڈ کرنے والے 4 ملزمان گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان سے سینکڑوں اصل شناختی کارڈ و سمز برآمد ہوئیں۔ ملزمان خواتین سے شناختی کارڈ لے کر سم ایشو کرواتے، بعد میں احساس کفالت کے پیسے نکلواتے تھے۔ خواتین کے نام پر سمز کو غیر قانونی طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ اسسٹنٹ کمشنر اورنگزیب سندھو نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پنجاب کالج تاندیا مالا کے زیر اہتمام 2 روزہ اسپورٹس گالا کا آغاز کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ملک مبین کی رپورٹ میں۔ اور پنجاب کالج تاندیا والا کے زیر اہتمام کرکٹ اسٹیڈیم میں مقابلہ جات کروائے گئے، جس میں کالج کی مختلف ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر وائس پرنسپل پنجاب کالج تاندیا والا پروفیسر نذر حسین کا کہنا تھا، اسپورٹس گالا کا مقصد بچوں کو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کے موقع فراہم کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے غیر نصابی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اسپورٹس ڈائریکٹر پنجاب کالج تاندیا والا قاری نصرت حیات کا کہنا تھا، پنجاب کالج نے جس طرح تعلیمی میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے، اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس مقابلہ جات میں بھی نام کمایا، جس پر ہمیں فخر ہے۔ پسرور میں صحافی غیر محفوظ با اثر افراد کے خلاف خبر لگانا جرم بن گیا۔ نجی ٹی وی چینل کے رپورٹر کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جانے لگی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پسرور میں با اثر افراد کے خلاف خبر لگانا جرم بن گیا۔ نجی ٹی وی کے صحافی حسین گیلانی کو فون پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں، جس پر حسین گیلانی کی جانب سے ملزم سجاد کے خلاف تھانہ سٹی میں دی گئی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گنڈا ناصر کے صحافیوں کو دھمکیوں پر ہرگز قبول نہ ہوں گی۔ پسرور صحافی برادری نے متعلقہ SHO سٹی سجاول نواز، DSP پسرور عامر ملک، DO سیال کو یہ مطالبہ کیا کہ بااثر ملزم سجاد کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ قصور کے سرحدی گاؤں وزیر پور میں بابا ذاکر نقشبندی کی جانب سے سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا۔
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और वजीरपुर में बाबा ज़ाकिर नक्शबंदी की जानिब से सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनकाद किया गया, जिसमें खसूसी तौर पर हज़रत डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर अलवरी नक्शबंदी ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर मरूफ नात ख्वां ने बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत पेश किया। मेरे हजूर दा हो डेरा उथे रहंदा सदा सवेरा विच कब्र दे ओ आका आखणगे इनू छड़ दियो ते मेरा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। कसूर के नवाही गांव वजीरपुर में सालाना अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया गया, जिसमें कराची से खसूसी दावत पर हजरत किबला डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर अलवरी नक्शबंदी और पीर तरकियत रहबर शरीयत अल्लामा डॉक्टर अज़ैर महमूद अलवरी, अल्लामा हजरत फायज महमूद अनवरी, अल्लामा आतर महमूद अनवरी ने भी शिरकत की। महफिल के रूह रवां हजरत बाबा जी जाकिर हुसैन नक्शबंदी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खास उन्वान है, मौजू है, ये मौजू मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये आज ही नहीं बल्कि ये हर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 1947 से हमारे दादा, उसके बाद हमारे वालिद गिरामी और उनके बाद अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगा दी है। ये मिलाद मुस्तफ़ा हम हर साल मनाते हैं, और बल्कि मनानी भी चाहिए। चाहे दुनिया का किसी कोने पे मुसलमान है तो ये मनानी भी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और बासादत की खुशी हर मुसलमान को नहीं बल्कि तमाम 18,000 मखलूक को हुई है कि वो तमाम जहानों के लिए एक रहमत बन के आए। महफिल मिलाद में खवातीन के लिए बापर्दा इंतजाम भी किया गया। क्यों नहीं उनके महफिलों में आए, उनकी जिक्र की महफिलों में आए, उनके नाम की महफिल सजे तो हम उसके अंदर क्यों ना मुर्शिद आए उसके अंदर। अभी मुझे लोग बता रहे थे कि अभी भी ना साहब था कितनी मोहब्बत करता था अपने आस्थाने से, सरदार साहब आस्थाने कितनी मोहब्बत करते थे। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद, रॉयल न्यूज़, कसूर। मुस्लिम लीग नून ने कल के लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली। लॉन्ग मार्च का आगाज लाहौर से किया जाएगा। इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली रब्बानी। जी अली रब्बानी, अपडेट कीजिएगा। दोनों रहनुमाओं की जानिब से, हमजा शहबाज और मरीम नवाज की जानिब से कुछ रहनुमा मौजूद है। ख्वाजा इमरान वज़ीर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जी ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे, कैसी तैयारी आपकी लॉन्ग मार्च? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम पुरजोश है, और जिस दिन से अदम एतमाद पेश करने का ऐलान हुआ है तमाम कौम जो है वो इस बात पे दुआएं मांग रही है कि इमरान न्याजी जैसे जालिम हुक्मरान से और महंगाई के कोड़े बरसाने वाले हुक्मरान से पाकिस्तान की और हम सबकी जान छुटे। और जो लोगों को कहते थे कि इनकी कांपें टांग रही हैं, उनकी उस दिन से कांपें टांग रही हैं। आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मैं हैरान हूँ, फवाद चौधरी साहब हो, कोई और हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डट के खड़ा है कप्तान। हालत ये है कि आइन को वायलेट कर रहे हैं, और अगर जुर्रत है, अगर समझते हो कि डट के खड़े हो तो बुलाओ इजलास और कराओ वोटिंग। तो आज आइन को पामाल कर दिया गया। 14 दिन का टाइम था, 14 दिन गुजर चुके, अदम एतमाद का टाइम जो है वो गुजर रहा है और आपकी कांपें टांग रही हैं। कहाँ तक भागोगे? हम तुम्हें भगाएंगे और मुल्क से भगाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइए कि आप भी तैयारी कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ भी इस वक्त एक जलसा करने जा रही है, कोई आप क्लैश तो नहीं देख रहे दोनों पार्टियों के दरमियान? दोनों तरफ जो है ना वो कारकुन जो है ना पुरजोश है। जब कोई इलेक्शन जीत रहा हो तो उसको पोलिंग बंद कराना और लड़ाई करना वारा नहीं खाता। तो मुस्लिम लीग नून को और PDM को ये वारा नहीं खाता। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुके हैं, हम तो साबित कर चुके हैं कि इमरान तुम अक्सरियत खो चुके हो। तो अगर किसी ने पंगा लेने की कोशिश की तो ऐसी तबीयत सेट करेंगे कि इनकी बड़े भी याद रखेंगे। जी, ये थे ख्वाजा वज़ीर, और उनका ये कहना था कि अगर किसी ने पंगा लेने की कोशिश की तो तबीयत सेट कर दी जाएगी। भरपूर तैयार है, यहाँ पर भरपूर खिताब हुआ, और सुबह जो लॉन्ग मार्च शुरू होना है वो यहीं से उसका आगाज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट कसूर से जनरल सेक्रेटरी टिकट होल्डर मिसेज मुजम्मिल भट्टी ने रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं ताज़ीम शाह से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुज़म्मिल मसूद भट्टी, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कसूर और टिकट होल्डर PP 175 कसूर से हूँ। मैं आज खान साहब के लिए यकजहती के तौर पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। हम अपने प्राइम मिनिस्टर को बता देना चाहते हैं कि जो प्रेडिक्शन आपने 3 साल पहले की थी कि जब इन चोरों के ऊपर हाथ डालेंगे तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, वो चोरों का टोला इकट्ठा हो चुका है। लेकिन हमें अपने अल्लाह से बड़े बेहतरी की उम्मीद है और हमें खान साहब की क़यादत पे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो इन चोरों के टोलों से निपटेंगे भी और पाकिस्तान को एक सच्चा और अच्छा लीडर कायद आज़म के बाद आज नसीब हुआ है कि जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लीड भी कर रहा है और बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया के बारे में जिस तरह उन्होंने एक कानून पास करवा दिया है UNO से, तो मैं अपने भाइयों से और बहनों से भी इल्तमास करूंगी कि 27 मार्च को जितना हो सके हमने अपने खान साहब को स्ट्रेंथन करना है, उनको ताकत देनी है, उनको बताना है कि जिस माफिया के ख़िलाफ़ वो जंग कर रहे हैं वो अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ हैं। लाहौर में तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉन्फ्रेंस मीटिंग की गई, जिसमें वज़ीर ख़जाना पंजाब डॉक्टर अमजद समेत दीगर आला क़यादत की जानिब से शिरकत की गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बशीर खोकर की रिपोर्ट में। और हमारी होटल में मौजूद है और जहाँ पर जो इवेंट रखा गया उस इवेंट के हवाले से जो हेड है हम उनसे बात करेंगे कि वो हमें इस इवेंट के हवाले से क्या बताना चाहेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। KCCA एक ग्लोबल इदारा है पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और आज की जो कॉन्फ्रेंस है, आज की जो डायलॉग है, उसमें जो थीम है वो है सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर पाकिस्तान। ज़्यादा फोकस है रीथिंक करने, दोबारा सोचेंगे कैसे चीज़ों को बेहतर और मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं ताकि जो माशी या मीशत पे जो असर हम लेकर आना चाहते हैं, जो इफेक्टिविटी ड्राइव करना वो हम हासिल कर सकते हैं। तो आज आप देखेंगे थीम में हमारा फोकस है डिजिटल पे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, हमारा फोकस है सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस एक बड़ा की फोकस है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ग्लोबली कि आप एज एन कंट्री क्योंकि आपकी पॉलिसीज़ हैं जो कि माहौल को, सोसाइटी को और गवर्नेंस से जो भी एक इम्पैक्ट है। दूसरा जो एरिया हम पिक कर रहे हैं वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इंफरादी तौर पर या जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बिजनेस की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ताकि वो बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके अपने। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए ताकि जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं उसका जो हेड थे उनका कहना था कि इंशाअल्लाह हमारी कोशिश जारी है कि जो भी हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह हम अपनी कंपनी के लिए वो कोशिश हर मुमकिन जारी रखेंगे। दिया था वो साल के दौरान बढ़ा के 646 अरब रुपए का कर दिया। अगर पंजाब के माशी हालात ऐसे होते साल के दौरान कटौती लगती है, हमेशा डेवलपमेंट में इजाफा नहीं किया जाता। ये वाहिद हुकूमत है इसने साल के दौरान तकरीबन 100 अरब रुपए का इजाफा अपने डेवलपमेंट बजट में किया। इसके अलावा जब आप आवाम की बात करते हैं ये सुबह सरदार फारूक अमानुल्लाह खान दरेश की सदारत में 27 मार्च को होने वाले इस्लामाबाद जलसे के हवाले से PTI राजनपुर के अहदेदारान की मीटिंग। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं बलक शेर की रिपोर्ट में। और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लोकल गवर्नमेंट पंजाब सरदार फारूक अमानुल्लाह खान दरियश की जेर सदारत 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे के हवाले से PTI डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के अहदेदारों से मीटिंग इस्लामाबाद जलसा को कामयाब बनाने के लिए इंशाअल्लाह बहुत बड़ा काफिला लेकर जाएंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार की क़यादत में तमाम अरकान पार्लियामेंट में मुत्तहद है। पूरी कौम इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़ी है। इमरान खान इस वक्त मुल्क की जरूरत है। अगर हमने इमरान खान का साथ ना दिया तो आने वाली नस्लें हमें माफ ना करेंगी। इस वक्त हक और बातिल की जंग है। इमरान खान पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, अवाम की जंग लड़ रहा है। तमाम करप्टोला मुल्क को तबाह करने के लिए एक हो गया। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की मदद से इमरान खान के खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक बुरी तरह नाकाम होगी। अपोजिशन मुंह दिखाने के काबिल ना होगी। इस मौका पर कवर शफीकुल रहमान एडवोकेट, साबिक जिला जनरल सेक्रेटरी कवर राहत खुर्शीद, अजीजुल रहमान कुरैशी, साबिक सदर जिली सदर इंसाफ वेलफेयर राजनपुर, जिशान फरीद खान गोपांग, एडवोकेट मियां अहमद अफजल सकरैन, अकबर जसकानी
गिलानी, राव तंजील व दीगर ने शिरकत की। प्राचनपुर पुलिस लाइंस में यौम पाकिस्तान के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO चौधरी अफजल समेत दीगर अफसरान की जानिब से शिरकत की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ राजनपुर बलकशेर की रिपोर्ट में। और राजनपुर में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौका पर पुलिस लाइंस में तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में DPO चौधरी अफजल समेत दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। DPO की जानिब से कौमी तराने की गूंज में परचम कुशाई की गई। पुलिस की चौबंदस्ते ने इस्लामी पेश की और वतन की सालमियत और बका के लिए पुलिस अफसरान की जानिब से दुआ की गई। आज के दिन ही मुसलमान हिंद ने अपने मंजिल का तायन किया था। मुसलमानों की कुर्बानियां इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आई। हरिपुर में 23 मार्च के हवाले से मुख्तलिफ निजी स्कूलों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए, जिसमें DSP ट्रैफिक नौशाद गिलानी की जानिब से शिरकत भी की गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं फैयाज खान से। और हरिपुर में 23 मार्च के हवाले से मुख्तलिफ निजी स्कूलों में मुख्तलिफ तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें DSP ट्रैफिक नौशाद गिलानी ने शिरकत करके बच्चों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलो पेश करके वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार किया। इस मौका पर बच्चों ने इस अज़म का इजहार किया, हम सब एक हैं, ख्वा हमारी जुबान सकाफत मुख्तलिफ ही क्यों ना हो, हमारा मुल्क पाकिस्तान से हमें प्यार है। इस मौका पे तकरीब से खिताब करते हुए मैडम नौशाद गिलानी ने कहा, आज हमें एक अज़म के साथ मैदान में निकलना चाहिए। जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आप एक कामयाब फर्द बन सकते हैं। आपका जिंदगी में मकसद होना चाहिए, आपने कुछ बनना है तो इसके लिए आपको एक रास्ता का तयन करना चाहिए। तमाम उस्ताज़ किराम को मुबारकबाद देते हुए जिन्होंने इन खूबसूरत से बच्चों को आज के गुलदस्ता बनाकर पेश किया, पे जरूर बात करूंगी कि बच्चों की तालीम के साथ तरबियत भी जरूरी तवज्जो दें, क्योंकि अगर तालीम होगी तरबियत ना हुई तो मुआशरा इनको तंग नजरी के साथ देखेगा। बाद में मैडम नौशाद गिलानी ने बच्चों के साथ घुल मिल गई और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों और बच्चियों में मेडल तकसीम किए और ग्रुप फोटो बनवाई। अब रुक करते हैं सरगोधा का, जहां कमिश्नर सरगोधा डिवीजन नबील जावेद ने DC विजिलेंस स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। और कमिश्नर सरगोधा डिवीजन नबील जावेद ने बखर दौरे के मौका पर DCO विजिलेंस स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। विजिलेंस स्क्वाड डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का पब्लिक सर्विसेज की फराहमी का अमल में यकीनन बेहतर इकदाम साबित होगा। इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर सरगोधा डिवीजन नबील जावेद का कहना था, विजिलेंस स्क्वाड की बदौलत शहर भर में मुख्तलिफ सरकारी निजी अमूर की मॉनिटरिंग का अमल नहायत मुवस्सर अंदाज में जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख के अवामी रिलीफ का ये मंसूबा डिवीजन के दीगर अजला के लिए रोल मॉडल है। जिला के अवाम की फलाह बहबूद के लिए जामा हुकूमत हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। जिला के तरक्याती मनसूबा जात और बिलखासूस मेन रोड की मरम्मत व बहाली के लिए खसूसी इकदाम उठाए जाएंगे। आज दुनिया भर में जंगलात का आलमी दिन भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मौसमियाती तब्दीलियों की रोकथाम के लिए अमली इकदाम करना है। इस हवाले से तफसीलात हाजिर हैं इस रिपोर्ट में। और आज दुनिया भर में आलमी यौम जंगलात भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मौसमियाती तब्दीलियों की रोकथाम बारे अलमी इकदाम उठाना है। पेशावर की सिविल सोसाइटी ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर शिरका का कहना था, दरख्त कुदरत के फेफड़े हैं और हम जितने ज्यादा दरख्त लगाएंगे इतना ही हमारा माहौल खुशगवार होगा। इससे माहौल में आलूदगी काफी हद तक कम होगी, जो एक सेहतमंद मुआशरे के कयाम के लिए इंतहाई नागजीर है। टेरा काजी खां में कमिश्नर लियाकत अली चट्टा का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा के हमराह तालीमी इदारों और मराकज़ सेहत के दौरे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। और डेरा काजी खान में कमिश्नर लियाकत अली चट्टा का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा सालक के हमराह तालीमी इदारों और मरकज सेहत का दौरा। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने DIG खान तहसील के दायरे चेक किए। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल और बच्चों के लिए अस्पतालों के लॉन में साया और फलदार पौधे लगाए। कश्मीर में कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने नहम क्लास के हर बच्चा को कंप्यूटर की बुनियादी तालीम लाजमी देने की हिदायत की। लियाकत अली चट्टा के मुसलसल दौरों से इदारों में बेहतरी नजर आने लगी। NSB फंड से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैनाती की जाए और कहा स्कूल कौंसिल की मशावरा से इदारों में सहूलियत बेहतर की जाए। कमिश्नर ने कोट हैबत, यारो कोट, मुबारक, शाह सदरुद्दीन और दीगर इलाकों के दायरे को चेक किया। यहाँ पे एक SMO, 2 MO, सर 2 SMO की पोस्टें हैं, उनके लिए MO काम कर मेडिसिन वगैरह ठीक है। बाकी आपके अलावा डॉक्टर कौन कौन? जी सर, बैठ सकते हैं सर। 20 साल की पर्ची भेजा वो उनका सर अभी। जी सर।
फायरिंग तो नहीं होती है साइड पे लगा के रखते हैं जी सर कहाँ रखती है। शामिल करेंगे एक अफसोसनाक खबर। कामोगी में नौजवान ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। अहवाल हाजिर है मलिक राशिद महमूद की रिपोर्ट में। और कामोगी नौजवान ने ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर ली। ट्रेन हादसे की वजह से एक शख्स हलाक हुआ है। शाहिदीन के मुताबिक कामोगी मंडियाला रोड फाटक के करीब तेज रफ्तार ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी की। ट्रेन हादसे में हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त आदल मसीह वल फजल मसीह रोब गुजरावाला से हुई। जय वकुआ पर असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर और रेस्क्यू टीम में मौका पर पहुंच गईं और रेस्क्यू टीमों ने डेड बॉडी सिविल अस्पताल कामोगी मुंतकिल कर दी। वजीर कानून पंजाब मोहम्मद बशारत राजा की जानिब से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के साथ इजहार यकजहती की सदाएं बुलंद कर दी गई। हम खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हम खड़े थे, खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। इमरान खान और वजीर कानून पंजाब मोहम्मद बशारत राजा का ट्वीट। वजीर आजम इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के अज़म का आदा। हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे। वजीर कानून राजा बशारत ने कहा यकीन के साथ ईमान के साथ इमरान खान के साथ हैं। राजा बशारत ने ट्वीट करते हुए कहा रावलपिंडी के अवाम पंजाब भर से आने वाले जलसे की शुरा की मेजबानी के लिए तैयार हैं। ये बाजी खान ही जीतेगा कप्तान और हम तुम्हारे साथ हैं। खैरपुर नाथन शाह में 9 उम्र बच्ची की शादी करके रुखसत कर दिया गया। अहले इलाका की जानिब से शिकायत करने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अहवाल जानते हैं हनीफ लगारी की रिपोर्ट में। और जूही खैरपुर नाथन शाह के इलाका में 9 साला मासूम बच्ची की शादी का मामला। जूही के नवाही गाँव पीर बख्श लशारी की रहायशी जावेद लशारी से रुखसती कर दी गई। इत्तला मिलते पर वाही पांधी पुलिस जाग उठी। दूल्हा दुल्हनों निकाह पढ़ाने वाले मौलवी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया। मासूम बच्ची की शादी वाही पांधी के रहायशी जवेद वल्द मोहब्बत लशारी की बेटे से कर दी गई थी। वाही बांधी मासूम बच्ची का रिश्ता 1,30,000 रुपए में तय किया गया। अलाए जो चवन था उम्र नंढी है ना बा उम्र जाने पुछड़ी जवाना उम्र जी नंढी अधिक कुछ खबर मिली त उम्र नंढी है शादी थी ना बाबू मां जवान हां पंज मापी की कैसे खुशी देती हुई। अच्छा जे नंढ बाबा तो मेरे को मापी ने देवे हां कक्का हां क्या नका तुसा किथा बैठो खाई पहुंच तेरा नाला क्या दी शेर जात लाशारी लाशारी छा थे मां अब न है हाँ नो है अला चवन था उम्र नंढी है जी ना ना नंढी उम्र आंदी होया बा मां प्यो सकडेवन हां अच्छा अरे अपने बच्चा केयर करके आज जो कोर्ट आयो कोर्ट आयो तो गोठ वाले से ना दुश्मनी की है गोठा हां ब्यास को लो कौन किता ना चोरी ना को जोरी ना जबरदस्ती ऐसा कैसा खुशी यार मेरे गांव वाले ने मेरे भटरी जी बैठी गन ना तनु तो मत फोटो या ते नंढी है जात काथे राव वाई बंदी ये छा मसलो छा जो को यो मसलो थियो के असा सा दुश्मनी कई ता दुश्मनी कई हां त उनखे बे सजा मिले थी। अच्छा अला चोन शादी है शादी खुशी जी शादी खुशी है हां तो इन छोकरी जो वालिद साहब आयो ना ना कौन आयो आने वो छोना आयो त वो परे बैठल है ना खेलपुर नाथन शाह थले में खेलपुर नाथन शाह ये जो चौथा छोकरी की उम्र नंढी आ ना है नंढी छोकरी नंढी है तो नंढी है तो माफी ना देना ये चलो ना थे अच्छा माना उनकी उम्र है शादी पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख की क़यादत में इस्लामाबाद जाने वाले काफिले के मटियारी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मजीद जानते हैं आदिल खुश्क की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में जलसा के लिए अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की क़यादत में निकला सिंध कारवां मार्च मोटियारी पहुंचा, जहां पर पीटीआई रहनुमा और सिंध मेमन अतात के चेयरमैन हाजी अब्दुल रज़ाक मेमन ने कारवान सिंध का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन वाले अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के सहाने सपने देख रहे हैं कि इतना तो इनका भी हक है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा, अपोजिशन को अप्रैल में अप्रैल फूल बनाकर सरप्राइज मिलेगा। इन्होंने कहा, इमरान खान ने इनकी करप्ट के खिलाफ जंग जारी रहेगी, इन करप्टों से एहतसाब जरूर होगा। हलीम आदिल शेख ने कहा, 27 मार्च पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान की आवाम साबित करेगी इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इन्होंने कहा, इमरान खान एक आलम इस्लाम के लीडर तौर पर सामने आए। इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम ने सिलेक्ट किया कि समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट पीटीआई नुमाइंदों से लेकर दे रही है। नवाज लीग अफसोस की बात है कि नवाज लीग पीपल्स पार्टी सिंध हाउस को और सिंध कौम को बदनाम कर रही है। एक सवाल के जवाब में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा, एमक्यूएम से मुलाकातें कोई भी करे पर फैसला जल्द सामने आएगा। उंगली उठेगी, अंपायर में भी न्यूट्रल हो गया। ये कौन है अंपायर? वो असल पूरी दुनिया का अंपायर ऊपर बैठा है, वही है। और जो सिलेक्ट किया वो आवाम ने सिलेक्ट किया था। अल्लाह ताला जिसके हक में फैसला देगा वही चलेगा। ये दूसरे लोग नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह कौम हमारे साथ है। इमरान खान एक आलम इस्लाम के लीडर के तौर पर सामने आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, फिक्र ना करें, इनसे पूछे इनका क्या बनेगा। छोटू जरदारी और बड़ू जरदारी जो है, जिन्होंने सिर्फ हाउस को माइत्री डाल बनाया सिटी चैनल साहब, असांखे दुख है त असांजी टोपी अजरक जी उन्होंने बेहुरमती कई है, असांजी सिंधड़ीअ जी बेहुरमती कई आहे। सिंध हाउस में इहा ब्रोकरी करे, सिंधी माना खे दलाली चवंदा आहिनि, दलाली करे त माना वोट वठनि पिया पीटीआई जा, ॾियनि पिया नून लीग खे। ही छा पिया कनि? ॿियो बि कुझु चवंदा आहिनि सिंधी में हिनखे न, इन्हनि उहो कमु कनि पिया। असां सिंध हाउस खे बदनाम कयो आहे, सिंधी कौम खे बदनाम कयो आहे। इंशाल्लाह असां इन गंद सां जॾहिं इहो फारिग थींदा सिंध हाउस में ॾाढो इंशाल्लाह असां राशिद महमूद खे घुरायो, हुते इंशाल्लाह उहो कराईंदासीं क़ुरान खानी ख़तमा वतमा ॾियारी। उन कम लाइ राशिद महमूद साहब अची वेंदो। सिंध हाउस में सफ़ाई उन्हनि सां कराईंदासीं इंशाल्लाह, क़ुरान पाक जी तलावत कराए। लाड़काना में सोलंगी बरादरी इत्तेहाद के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सोलंगी बरादरी की जानिब से कसीर तादाद में शिरकत की गई। मजीद जानते हैं मोहम्मद कासिम बकियों की रिपोर्ट में। और लाड़काना में सोलंगी बरादरी इत्तेहाद का प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। प्रोग्राम में सोलंगी बरादरी के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम महरूम खादम हुसैन सोलंगी के बेटे जुबैर सोलंगी के सरबराही में हुआ। सोलंगी बरादरी के इत्तेहाद नई बॉडी की तश्कील की गई। सोलंगी बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने फकीर शहजाद सोलंगी को लाड़काना डिवीजन का सदर मुंतखब किया। वाजिद सोलंगी जिला लाड़काना का सदर मुंतखब। सोलंगी बरादरी ने सदर मुकाम के ओहदे पर फायज होने वाले को सोलंगी बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने हलफ बरादरी का काम सर अंजाम दिया। राब्तो कयो कुछ ॾींहंनि खां त साईं हिकिड़ी कंपनी आहे, हुन में इदारो आहे, असांजी माना वैकेंसी आहे। पोइ पंहिंजो को माण्हू अथव, उहो पंहिंजो माण्हू मोकिलियो त हुनखे कंहिं माना नौकिरी सां लॻायूं। पोइ हुन खां तरीक़ेकार मां पुछियुमि, हुन चयो त साईं ज़बरदस्त इदारो आहे, सुठी इनकम आहे। पोइ तरीक़ेकार पुछियुमि मां, जी कंपनी 4000 रुपया पहिरियां फीस आहे, 4000 रुपया फीस आहे। पोइ साईं खे चवां हुनजी 2-3 ॾींहं टेस्ट आहे, उहा टेस्ट कढणी पवंदी हुनखे। पोइ साईं इदारे जो माण्हू थी वेंदो। पोइ 2-3 ॾींहं असां छोकिरे खे पंहिंजी तयारी करे मोकिलियोसीं। पोइ साईं उतरे पहुतो, 2-3 हज़ार 4000 रुपया हुनखे वठंदो आहे फीस, हुनखे उतरे प्यारी। ऐं हुनखां अलावा वरी पोइ 4-5 ॾींहंनि खां पोइ साईं जी जॾहिं 2-3 ॾींहं हुनजी ओपो बि या थींदी आहे ऑफिस में, पोइ हुन चयो, साईं तव्हां टेस्ट में पास थी आयो, हाणे तव्हां पंहिंजे मालिकनि खे चयो त 45,000 रुपया मोकिलिनि त तव्हांजो कंपनी जो लाइसेंस तव्हांजे नाले सां ठहंदो। पोइ राति जो तक़रीबन 8 बजे दारा मूंखे पंहिंजे सोट फ़ोन कई। पोइ मां हुनजे मालिकनि खे मां चयो, उहा मजबूर ईअं पंहिंजे फ़ोन आई आहे ईअं त छोकिरो पास थी वियो आहे, कंपनी वारा 45,000 रुपया घुरनि था त तव्हांजो छोकिरो जो कंपनी लाइसेंस नाले जो ठहंदो, पोइ तव्हांजो उमिरि इदारे जो थी वेंदो। पोइ 45,000 का तकलीफ़ करे हुनखे 45,000 रुपया मोकिलियासीं। पोइ लाइसेंस आयो, कोई हिन जो कार्ड आयो। साईं खे चवां, जीअं कार्ड जो आहे त हुन कार्ड ते टाइम्स लिखियलु हुयो। छो टाइम्स खां असां पहिरियां ई लाड़काने में असांजी इहा कंपनी टाइम्स इहा आयल हुई, उन में पहिरियां ई असां माना धोखो खाधल हुयासीं। उहा तमामु माना उन में
को भी मना साईं के चवां मना सो कंपनी जो मना को रूल मना को भी रूल सही ना आहे मना धोखेबाज़ी आहे ठगी आहे फ्रॉड आहे ग़रीब मिस्किन माण्हुनि सां मना ॾाढी ठगी कई थी वञे सो मां दरख़्वास्त कंदुमि पंहिंजे साईं खे चवां वज़ीर आला सिंध खे ऐं साईं लाड़काना SSP के DIG साहब के लाहौर के इलाके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में तकवा एसोसिएट एंड बिल्डर्स के ऑनर मलिक शाहिद की रॉयल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। इस हवाले से मजीद जानते हैं माजिद जमील की रिपोर्ट में। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं पिछले 20 साल से स्ट्रेट लाइफ, बैंकर्स टाउन, सुई गैस और HBFC को डील कर रहा हूँ और ये तकवा एसोसिएट हम पिछले 10 साल से बनाया है। ये सेल परचेज़ का हमारा बाएतमाद इदारा है। मैं मोहम्मद इजाज़ तकवा एसोसिएट एंड बिल्डर पे बैठता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे बैंकर सोसाइटी में ये पीछे C ब्लॉक है नॉन पोजेशन फाइलों में और इसमें ये जो पोजेशन वाले प्लॉट हैं इसमें और कमर्शियल में और हम स्पेशलिस्ट यहाँ पे काम करते हैं। तकवा स्टेट बाइतमाद अदारा है, ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन तकवा एसोसिएट एंड बिल्डर्स के जो ऑनर हैं मलिक शाहिद साहब या इजाज़ भाई साहब, इनके साथ मैं तकरीबन कुछ 5 से 7 साल से काम कर रहा हूँ। किला नवाब ऑफ टांक में PTI का इजलास कसीर तादाद में कारकुनान की जानिब से शिरकत की गई। 27 मार्च को होने वाले इमरान खान के जलसे में शिरकत की गर्ज से 60 गाड़ियों का इंतजाम कर दिया गया। अहवाल जानते हैं आदम खान कुंडी की रिपोर्ट में। PTI ज़िला टांक का 27 मार्च इस्लामाबाद जलसे के लिए किला नवाब ऑफ टांक में इरफान खान कुंडी के ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें तकरीबन 60 गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया। आज हमारी PTI टांक की मीटिंग हुई है कल जलसे के हवाले से और इंशाअल्लाह अज़ीज़ टांक की तरफ से हम भरपूर शिरकत करने जा रहे हैं खान साहब की कॉल पे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम 8 बजे एक काफ़िला निकलेगा इंशाअल्लाह, फिर हम 8:45 बजे तकरीबन इंटरचेंज पे पहुंचेंगे। इंशाल्लाह आज हमने टांग की जो हमारी पूरी पार्टी की क़यादत है और हमारे वर्कर्स हैं, हमने एक मुशावरती मीटिंग की है। इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर लब्बैक कहते हुए इंशाल्लाह टांग के वर्कर और टांग के जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँचेंगे। कि कल 27 मार्च को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में एक तारीख़ी जलसा होगा, उस सिलसिले में आज यहाँ पे मीटिंग हुई। माशाल्लाह टांग के बहुत बड़ी तादाद में वर्करों ने, दोस्तों ने, टांग के लोगों ने शिरकत की, ये दिखाने के लिए कि पूरी कौम कप्तान के साथ है। कल 27 मार्च को सुबह 8 बजे PTI का काफिला टांग से रवाना होगा। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांग। रॉयल न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़।